Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 27 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। नेम द पर्सन हु लॉन्च द मेडटेक मित्रा टू एम्पावर मेडटेक सेक्टर। तो ये मेडटेक मित्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इनके द्वारा वर्चुअली ये मेडटेक मित्रा लॉन्च किया गया था। अब मेडटेक क्या है? जैसे हम देखते हैं एडटेक होता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो यहाँ पे मेडटेक क्या हो गया? मेडिसिन टेक्नोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी। मतलब इन दोनों फील्ड को, मेडिकल फील्ड को और टेक्नोलॉजी को जब साथ मिला के हम नई चीज़ें डेवलप करते हैं, राइट, उससे इनोवेशंस आती है, तो उसको हम मेडटेक कहते थे, राइट। सिमिलरली आपका फिनटेक होता है। फिनटेक क्या होता है? फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। फिर यही याद रखेंगे, ये जो इनिशिएटिव है मेडटेक मित्रा, इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, ICMR अलॉन्ग विद CDSCO। CDSCO क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके द्वारा मिलकर इस इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा मेडटेक मित्रा का? ताकि बूस्ट करना है इंडिजीनियस डेवलपमेंट। हम जानते हैं जैसे हमने डिफेंस सेक्टर में इंडिया में पहले हम काफ़ी हेवीली डिपेंडेंट होते थे डिफेंस इक्विपमेंट्स पे, डिफेंस टेक्नोलॉजीज पे, लेकिन इंडिया ने फिर इसको मेक इन इंडिया के अंदर लाके खुद ही इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करना स्टार्ट किया। सिमिलरली मेडिकल सेक्टर जो है, मेडटेक सेक्टर है, 80% हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स पर। इसकी डिपेंडेंस को कम करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनाइजेशन प्रोडक्ट्स हम ला सकें, खुद ही अपनी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स भी इंडिया में हम खुद बना सकें, इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए यहाँ पर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द स्टेट या यूटी इन इंडिया जिसने टॉप किया, दैट हैज टॉप्ड इन क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स। तो इंडिया में वो कौन सी स्टेट या यूटी है जिसने टॉप किया? वो है दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला क्रिप्टो अडॉप्शन, करेक्ट। एंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अगर टोटल देखें दिल्ली की, तो यहाँ पे आ जाती है 8.8%, फॉलोड बाय बेंगलुरु आपकी आ जाती है 8.3%, मुंबई थर्ड पोजीशन पे 5.2%, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। फिर हम जानते हैं बिटकॉइन, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आपकी क्रिप्टो करेंसी है। 150% से भी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिला पिछले एक साल में। फिर डॉज कॉइन आ जाता है, सोलाना आ जाता है, राइट, आर्क आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं। फिर बात करें ये डाटा किसके द्वारा रिलीज़ किया गया था, तो कॉइन स्विच के द्वारा ये डाटा रिलीज़ किया गया। ये इंडिया की लार्जेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। कॉइन स्विच की बात करें तो आशीष सिंघल यहाँ के CEO रहेंगे। बेंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। मूविंग ऑन, इंडिया एंड ओमान, इन्होंने अडॉप्ट किया विजन डॉक्यूमेंट टू एक्सपेंड बायलेटरल कॉर्पोरेशन। तो याद रखेंगे इंडिया और ओमान के बीच में ये अभी विजिट की थी इनके सुल्तान ने ऑफ ओमान ने अभी इंडिया में, करेक्ट। ड्यूरिंग दिस सेवरल MOUs यहाँ पे साइन किए गए, और इसी के साथ साथ एक थर्ड ट्रांच ऑफ ओमान, इंडिया
जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप करने की बात की गई, जिससे क्या है कि हमें डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिया और ओमान उसमें भी हमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मूविंग ऑन, विच स्टेट हैज एमर्ज एज द लीडर इन द रूफटॉप सोलर कैपेसिटी। तो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी में कौन सी स्टेट एमर्ज करती है एज द लीडर? इससे पहले याद रखेंगे इंडिया ने अभी 10 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी को अचीव कर लिया इस टारगेट को, एंड गुजरात वो स्टेट है जिसने टॉप किया एज, और गुजरात वो स्टेट है जो एमर्ज करके आई एज द लीडर इन द रूफटॉप सोलर कैपेसिटी। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। और जो हम ग्रोथ देखें CAGR के हिसाब से, जो कि है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो वो 46% का रहेगा ऑफ सोलर रूफटॉप का। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज हम ध्यान देंगे, हम बात कर रहे हैं एक रिपोर्ट रिलीज की गई PwC के द्वारा। PwC के आपका प्राइस वाटरहाउस कॉपरेटिव्स, राइट, ये इनका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। इनके द्वारा एक सर्वे रिलीज किया गया कि जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंडियन कंपनी है, वो किस चीज़ से थ्रेट फेस करती हैं, उनको किस चीज़ से दिक्कत है, राइट, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही हैं। सबसे जो पहली पोजीशन पे जो दिक्कत आई ना वो है साइबर थ्रेट, राइट, साइबर थ्रेट आपका टॉप पे रहा। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है क्लाइमेट चेंज, और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है इन्फ्लेशन। करेक्ट, कोई भी अगर बिजनेस रन कर रहा है, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे पहली पोजीशन पे साइबर थ्रेट उनको दिक्कत कर रहा है, फिर क्लाइमेट चेंज और फिर इन्फ्लेशन। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया? PwC के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड बीमा विस्तार, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ये बीमा विस्तार किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया? IRDAI के द्वारा इसको रिलीज किया गया। एंड ये बीमा विस्तार एक अपने आप टाइप का एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट रहेगा, जो कि लाइफ कवर देता है, हेल्थ कवर देता है, प्रॉपर्टी कवर देता है, एंड इसको फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 25 में लॉन्च किया जाएगा। बीमा विस्तार एक पार्ट रहेगा ट्रिनिटी का, जो इंक्लूड करेगा बीमा सुगम एंड बीमा वाहक एंड अ वीमेन लेड डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स। करेक्ट, एंड ये किस लिए है बेसिकली, और हम जानते हैं IRDAI का विजन क्या है कि हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करानी है 2047 तक हर व्यक्ति को। ठीक है, चलिए, तो ये बीमा विस्तार किसके द्वारा? IRDAI के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर RBI ने अभी 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया टू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफ बजाज फाइनेंस एंड RBL बैंक। इससे पहले बजाज फाइनेंस ने 2 साल का एक्सटेंशन मांगा था RBI से, लेकिन इनको अभी सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, 1 साल का एक्सटेंशन मिला, RBI ने इसके लिए परमिशन ग्रांट की। 21 दिसंबर 2024 तक ये ग्रांट मिला, इनको एक्सटेंशन मिला है। करेक्ट, ऑफ फॉर द को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जो कि RBL बैंक एंड बजाज फाइनेंस बैंक के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया। करेक्ट, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पे अभी एक 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी इंपोज कर दी गई है RBI के द्वारा ओवर द सोल्ड नोट रेमिटेंस। सोल्ड नोट्स क्या होते हैं? जो पेपर आपके ड्यू टू डर्टी वाटर एंड नॉर्मल वियर एंड टीयर से खराब हो जाते हैं, उनको सोल्ड नोट्स कहते हैं। तो RBI ने अभी 5 करोड़ की पेनल्टी इंपोज की है ऑन द बैंक ऑफ बड़ौदा एज पर देयर क्लीन नोट पॉलिसी। तो RBI चाहता है, 2002 में इन्होंने ये क्लीन नोट पॉलिसी रिलीज की थी, जिसके अंडर गुड क्वालिटी नोट्स आपके मार्केट में सर्कुलेट होने चाहिए, पब्लिक तक जाने चाहिए, और जो भी डैमेज काउंटरफिट सॉइल नोट्स होते हैं उनको रिमूव करके सर्कुलेशन से दूसरे नोट्स यहाँ पे लाने चाहिए। इसके ये प्रोसेस नहीं हो पाई, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको फॉलो नहीं किया, और कहीं ना कहीं हमें काउंटरफिट फेक नोट्स भी मिले, जिसके तहत यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2750 रुपए की पेनल्टी भी इंपोज करिए अपार्ट फ्रॉम दिस 5 करोड़ पेनल्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अभी इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि 1799 मेगावाट ऑफ सोलर पावर को हम सप्लाई कर सकें, राइट, इसको डिलीवर कर सके टू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन हुआ है, आने वाले 25 साल के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है कि सोलर एनर्जी से जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जनरेट करेगी, वो हम आगे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कर देंगे आने वाले 50 साल तक, और आने वाले 25 साल तक, राइट। एंड दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर टेंडर, ये एक रिकॉर्ड सेट किया गया। ठीक है, एंड यहाँ पे अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का टारगेट रहेगा कि हम 45 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करें बाय 2030, राइट। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मैं SECI की बात करूँ, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा, और 2011 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं रिलायंस एंड वॉल्ट डिज्नी, इन्होंने मिलकर एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया टू मर्ज मीडिया ऑपरेशन। तो अब दोनों ने साथ आ जाएंगे, तो एक दूसरों की जो ऑडियंस है वो भी यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा ग्रो देखने को मिलेगा, राइट। एंड यहाँ पे याद रखेंगे अंडर दिस मर्जर रिलायंस ओन करेगा 51% एंड जो वॉल्ट डिज्नी है ये ओन करेगा 49% एंड द मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज्ड बाय फरवरी 2024। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं DSCI अवार्ड्स की। DSCI क्या है? 18th एडिशन ऑफ द नास्कॉम डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अवार्ड्स। इनका एनुअल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समिट हुई थी, इनके दौरान ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए। 18th एडिशन थी इस समिट की, ये 3 डे इवेंट हुआ था और इसके दौरान 13th एडिशन ऑफ दिस DSCI एक्सीलेंस अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए ड्यूरिंग दिस 18th एडिशन ऑफ नास्कॉम डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एनुअल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समिट, जो कहाँ पर हुई? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी। याद रखेंगे 3 दिन का इवेंट था, 19 से लेके 21 दिसंबर तक ये इवेंट था। कहाँ पर हुआ था? लीला एम्बियंस होटल गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था, राइट। और ये जो ऑर्गेनाइज था DSCI के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आप देख सकते हैं DSCI एक्सीलेंस अवार्ड हुए, 13th एडिशन थे ये इन अवार्ड्स के, और ये हुए कब? ड्यूरिंग द 18th एडिशन ऑफ द नास्कॉम DSCI एनुअल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समिट के दौरान, जो कि एक 3 डे इवेंट था। मूविंग ऑन, हु हैज बीन नेम्ड एज द इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्लाइस बैग NESFB। NESFB क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो याद रखेंगे हु हैज बीन, किनको अभी इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का? तो वो है सतीश कुमार कालरा जी, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर। चाइना ने अभी 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया फ्रॉम द साउथ चाइना सी। ये सैटेलाइट लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट की मदद से लॉन्च की गई एंड ये पार्ट रहेंगी ऑफ द शियान 24C सीरीज की, करेक्ट। देन अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ याद रखेंगे, चाइना ने लॉन्च की 2 मिडल अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट टू बाइडू कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। बाइडू कॉन्स्टिलेशन में, जो कि सिंस 2020 से कंप्लीट हो चुका है, वहां पर 2 और सैटेलाइट्स लॉन्च की, 57 एंड 58 सैटेलाइट ऑफ द बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम टू मीडियम अर्थ ऑर्बिट, चाइना के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट आ जाता है बुक्स एंड ऑथर्स पर। तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली PM मोदी ने फर्स्ट सीरीज ऑफ 11 वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इसको रिलीज किया ऑन द ओकेजन ऑफ 162nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदन मोहन मालवीय जी, जो कि फाउंडर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। इनके द्वारा यहाँ पे फर्स्ट सीरीज ऑफ द 11 वॉल्यूम्स, पहली सीरीज ऑफ 11 वॉल्यूम्स यहाँ पे बुक रिलीज की गई, जो थी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय जी। विज्ञान भवन में न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया, राइट। इनकी स्पीचेस, इनकी आर्टिकल्स, मेमोरेंडम्स, आर्टिकल पैम्पलेट्स, बुकलेट जो इनके द्वारा लिखी गई हैं टाइम टू एंड, उस सारी चीज़ों को यहाँ पे कंपाइल करके इसमें लॉन्च किया गया। दूसरी बुक याद रखेंगे ब्रेकिंग द मोल्ड। ये ब्रेकिंग द बोल्ड बुक है, जो कि रघुराम राजन जी एंड रोहित लांबा जी के द्वारा मिलकर ऑथर की गई। रघुराम राजन कौन है? ये फॉर्मर गवर्नर है RBI के, एंड इकोनॉमिस्ट रोहित लांबा के द्वारा मिलकर यहाँ पे इस नई बुक को ऑथर किया गया, जो कि है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ये बात करते हैं कि कैसे हम इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इंडिया को आगे ग्रो करने के लिए। और हम जानते हैं इंडिया का टारगेट है 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाए, डेवलपिंग नेशन से। तो उसके लिए क्या हमारा पाथ होना चाहिए और कैसे हमें आगे बढ़ना है इंडिया को, उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट एवर वीक लॉन्ग शिमला विंटर कार्निवल फ्रॉम 25 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक। अभी हमने देखा जब ये क्रिसमस की छुट्टियां हुई तो बहुत सारे लोग अपनी छुट्टियां मनाने पहाड़ों में चले गए, शिमला में। और ये जो विंटर कार्निवल है ना, बेसिकली जो इतने जो टूरिस्ट गए हैं ना वहाँ पर, उनको कैटर करने के लिए, उनके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च करा, करेक्ट। इससे क्या होगा, एक तो टूरिज्म एक्टिविटीज़ वैसे इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, राइट। और इससे और एक थोड़ा सा माहौल बनेगा वहाँ पे पार्टी टाइप का आपका विंटर का, क्योंकि अभी वहाँ पे क्रिसमस भी है, न्यू ईयर है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आपकी 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में दोनों कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पर। मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया मेडटेक मित्र, हम देख चुके हैं। कोइंसविच ने इंडिया के क्रिप्टो पोर्टफोलियो की एक रिपोर्ट रिलीज की और दिल्ली ने टॉप किया इन दिस क्रिप्टो अडॉप्शन। इंडिया एंड ओमान इन्होंने अडॉप्ट किया विजन डॉक्यूमेंट टू एक्सपेंड बायलैटरल कोऑपरेशन। PwC ग्लोबल रिस्क सर्वे रिलीज हुआ और साइबर रिस्क यहाँ पे टॉप पर आया, क्लाइमेट चेंज सेकंड एंड इन्फ्लेशन थर्ड पर। देन इंडिया का टोटल रूफटॉप सोलर कैपेसिटी क्रॉसेस 10 गीगावाट और गुजरात एमर्ज एज द लीडर।
IRDAI सेट टू लॉन्च बीमा विस्तार, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट रहेगा। RBI ने ग्रांट किया 1 साल का एक्सटेंशन टू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑफ बजाज फाइनेंस एंड RBL बैंक। अडानी ग्रीन एनर्जी ने साइन किया एक पैक्ट विद SCCI फॉर सप्लाई ऑफ 1799 मेगावाट सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर के लिए सप्लाई के लिए, राइट। ये एक परचेज पावर एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट, रिलायंस एंड वॉल्ट डिज्नी के बीच में एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन हुआ। देन DSCI एक्सीलेंस अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए एट नास्कॉम DSCI एनुअल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समिट 2023 के। सतीश कुमार कालरा, इनको अपॉइंट किया गया इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्लाइस बैंक नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। देन चाइना ने 3 सैटेलाइट्स लॉन्च की इन ऑर्बिट फ्रॉम साउथ चाइना सी। PM मोदी ने फर्स्ट सीरीज ऑफ 11 वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, बुक के ऊपर जो इनके ऊपर जो भी आर्टिकल्स थे, मेमोरेंडम्स थे, राइट, जो इनके डिसीजंस थे वो सारे यहाँ पे रिलीज किए। देन ब्रेकिंग द मोल्ड, ये एक बुक है जो कि रघुराम राजन एंड इकोनॉमिस्ट रोहित लांबा जी के द्वारा रिलीज की गई। देन हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट एवर वीक लॉन्ग शिमला विंटर कार्निवल 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन था। अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने अलॉन्ग विद इंडिया अभी 11th एडिशन ऑफ संप्रीति एक्सरसाइज कंडक्ट करी उमरोई मेघालय में। तो हम बात कर रहे हैं संप्रीति एक्सरसाइज की, राइट। संप्रीति एक्सरसाइज किन के बीच में हुई? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज हुई, पहली चीज़। फिर याद रखेंगे ये 11th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, 3 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुई थी। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जो हमें ऑप्शन क्वेश्चन में भी गई हुई है, उमरोई मेघालय में ये एक्सरसाइज कराई गई थी। दूसरे क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि संप्रीति एक्सरसाइज का 11th एडिशन कहां पर हुआ था? तो इंडिया के उमरोई मेघालय में हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अभी एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज हुई थी चक्रावत 2023। ये इंडियन नेवी के साथ इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी चक्रावत। पूछा जा रहा है ये चक्रावत एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? लोकेशन पूछी जा रही है आपसे, देखा आ गई ना लोकेशन। तो ये गोवा में हुई थी, सबसे पहले ये याद रखेंगे। फिर गोवा में ही 37वें नेशनल गेम्स हुए थे जहाँ पर महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल सिक्योर किए थे, फिर ये याद रखेंगे, राइट। तो गोवा में हुई थी ये चक्रावत, इंडियन नेवी के द्वारा कराई गई थी, 9 से 11 अक्टूबर तक हुई थी, गोवा में हुई थी, ठीक। फिर याद रखेंगे ये जो HADR एक्सरसाइज है सागर इनिशिएटिव के अंडर हुई थी। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव, सागर इनिशिएटिव। तो कहां पर? गोवा में। नेक्स्ट, देन नेम द 2 डे कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई अभी जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। क्या नाम रहेगा इस कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज का? तो ये है ईस्ट कोस्ट सागर कवच, राइट। ये एक्सरसाइज है इन लोकेशन पे हुई थी। यहाँ पे 2500 से भी ज़्यादा पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मरीन्स, इंटरनेशनल एजेंसीज, फिशरीज, मरीन पुलिस, राइट। इन सब के द्वारा यहाँ पर ये एक्सरसाइज देखी गई। नेक्स्ट आ जाता है अभी रिसेंटली, नेम द डिवाइस जिसको अभी रिसेंटली डेवलप किया गया बाय इसरो टू एनहेंस द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन ड्यूरिंग देयर सी एक्सपेडिशन। तो जो ये आपका शोर है एंड जो वाटर एरिया है उसके बीच में जो गैप है उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि कम्युनिकेशन बेटर हो सके, अभी एक डिवाइस डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। पूछा जा रहा है उसका नाम क्या रहेगा? तो वो है नभमित्रा। नभमित्रा ये डेवलप किया गया इसरो के द्वारा, ठीक है। ये और इसरो के भी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है जो कि अहमदाबाद गुजरात में रहेगा। एंड ये जो डिवाइस है ये सेफ्टी इंश्योर करता है ऑफ फिशरमैन ड्यूरिंग सी एक्सपेडिशंस, राइट। और बेसिकली क्या है? कम्युनिकेशन को एनहांस करता है ये बिटवीन द फिशरमैन जो सी में अपना एक्सप्लोरेशन कर रहा है, जो अपने मिशन पर है, एंड शी शोर। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया 2 रिसोर्सेज डिजाइंड 4th वर्जन ऑफ प्रिवेंटिंग सुसाइड, अ रिसोर्स फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स एंड अ पॉलिसी ब्रीफ ऑन द हेल्थ एस्पेक्ट एंड ऑफ डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड एंड सुसाइड अटेम्प्ट्स टू सुसाइड प्रिवेंशन। तो याद रखेंगे इसको ऐसे, WHO के द्वारा डायरेक्टली इसको याद रखो, WHO के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया 1 आउट ऑफ 100 डेथ्स जो होती है ना उसका रीज़न सुसाइड होता है। एंड सुसाइड सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है बिटवीन 15 से 29 ईयर्स ऑफ एज के बीच में। एंड ये 4th वर्जन था इस रिपोर्ट का, और इसमें 2 चीज़ लॉन्च की गई, 4th वर्जन ऑफ प्रिवेंटिंग सुसाइड, एक रिसोर्स फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स एंड एक पॉलिसी ब्रीफ ऑन द हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड एंड सुसाइड अटेम्प्ट्स, करेक्ट। और जो ये बताया जाता है कि इन डेथ की वजह से ऑलमोस्ट 7 लाख लोग ऐसे हैं जो कि अफेक्ट होते हैं,
एंड इसका थर्ड वर्जन 2017 में रिलीज़ किया गया था और अभी फोर्थ वर्जन रिलीज़ किया गया है इसका। नेक्स्ट एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति, ये एक 2 वीक इंडो मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी। पूछा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज को कहाँ कंडक्ट कराया गया, तो याद रखेंगे हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी के बीच में हुई और कहाँ पर हुई, लोकेशन पूछा जाए तो मेघालय में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। और इससे जो पुराना एडिशन था 2022 में जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो आपका मलेशिया में कंडक्ट कराया गया था। एंड 2012 से हर साल ये एक्सरसाइज इन दोनों कंट्रीज के बीच में होती आ रही है, हरिमऊ शक्ति। तो दोस्तों ये तो थे डिफेंस। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। तो अभी रिसेंटली डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के, इनके द्वारा लॉन्च किया गया द डैश ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0, राइट। तो सबसे पहले ये IGMS की फुल फॉर्म ही यहाँ पे पूछा जा रहा है, इंटेलिजेंट ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम IGMS 2.0। ये एक ग्रीवियंस पोर्टल रहेगा एंड ऑटोमेटेड एनालिसिस इन ट्री डैशबोर्ड पोर्टल रहेगा ऑफ DARPG, जो अभी लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन 5 यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहता है। ठीक, नेक्स्ट फिर यहीं पे याद रखेंगे इनके द्वारा अभी एक स्पेशल स्वच्छता कैंपेन भी लॉन्च किया गया था, स्पेशल स्वच्छता कैंपेन 3.0। ठीक, कब लॉन्च किया गया था, ये 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया, जो कि महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है, क्योंकि उन्हीं के बर्थडे पे आपको याद होता है हर साल हम स्वच्छता कैंपेन लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने भी पार्टनर किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ टू लॉन्च इंद्रजाल, जो कि इंडिया का पहला AI एनेबल्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम रहेगा। तो याद रखेंगे इंद्रजाल। सबसे पहले ये इंद्रजाल क्या है, इंद्रजाल आपका जैसे अगर आपको याद हो एक आयरन डोम सिस्टम है, राइट। आयरन डोम इजराइल का ये सिस्टम है एंड जो भी हमास की तरफ से इजराइल में जो भी रॉकेट्स फायर किए जाते थे, मिसाइल फायर की जाती थी, उनको हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है ये आयरन डोम। ठीक है, तो आयरन डोम जैसा ही सिस्टम ये रहेगा इंद्रजाल, जो कि इंडिया में सेटअप किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया। ये इंद्रजाल AI बेस्ड रहेगा, मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रहेगा, अपने आप ट्रैक करके उन ड्रोन्स को, उन मिसाइल्स को हवा में ये डिस्ट्रॉय कर देगा। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि किस कंपनी ने यहाँ पे टाई अप किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, तो वो है ग्रीनी रोबोटिक्स, राइट। ग्रीनी रोबोटिक्स ये कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में। इन्होंने टाई अप किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ताकि इस इंद्रजाल को लॉन्च कर सकें, जो कि इंडिया का पहला एंड ओनली काउंटर ड्रोन सिस्टम रहेगा, जो कि AI को, मशीन लर्निंग को यूज करता है टू काउंटर ड्रोन थ्रेट्स, राइट। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया भारत ड्रोन एसोसिएशन एंड नेशनल ड्रोन पायलट एसोसिएशन के साथ ताकि एक इक्वालिटी ड्रोन प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके। तो ये इक्वालिटी ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने टाई अप किया भारत ड्रोन एसोसिएशन के साथ एंड नेशनल ड्रोन पायलट एसोसिएशन के साथ, वो है गरुड़ा एरोस्पेस। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे पहली चीज़ तो याद रखेंगे ये 10 दिन लंबी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। चेन्नई तमिलनाडु में ये इक्वालिटी ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया एंड इससे क्या होगा, जो भी आपके पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन एंड स्किल प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो ड्रोन्स को यहाँ पे मॉनिटर कर सकें, उसको यूज़ कर सकें, करेक्ट, उसके बारे में स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएगी यहाँ पे। फिर गरुड़ा एरोस्पेस की बात करें तो फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे गरुड़ एरोस्पेस के, वो है अग्निश्वर जयप्रकाश। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, नेम द यूनिवर्सिटी दैट हैज़ पार्टनर्ड विद ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के साथ अभी किस यूनिवर्सिटी ने पार्टनर किया ताकि एक UTIKS पोर्टल को लॉन्च किया जा सके। ये क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम, UTIKS पोर्टल। तो कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी, वो है सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। इन्होंने ICCR के साथ मिलकर यहाँ पे ये UTIKS पोर्टल को लॉन्च करा। ठीक, और ये UTIKS पोर्टल बेसिकली क्या काम करेगा, इसका क्या किस ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, बेसिकली इंडियन कल्चर को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए, राइट, ताकि वर्ल्ड वाइड जो ऑडियंस है ग्लोबली इंडिया के कल्चर को, इंडिया की रिच सिविलाइजेशन को इन अ लर्नर फ्रेंडली मैनर उनके सामने ले जाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द स्पेस एजेंसी कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स ऑफ क्यूपरसैट-1 एंड क्यूपरसैट-2 बाय यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट टू लो अर्थ ऑर्बिट फॉर प्रोजेक्ट क्यूपर सैटेलाइट सिस्टम। तो अमेजॉन कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा यहाँ पे याद रखेंगे ये फर्स्ट 2 प्रोटोटाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स क्यूपरसैट-1 एंड क्यूपरसैट-2, इनको यहाँ पे लॉन्च किया गया और किसकी मदद से, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट की मदद से। कहाँ से, केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन जो कि फ्लोरिडा USA में है, वहाँ से।
नेक्स्ट, which company has recently handed over the first integrated airdrop test crew module structure to ISRO for Gaganyaan spacecraft? तो किसके द्वारा ये हैंड ओवर किया गया? केसीपी हैवी इंजीनियरिंग के द्वारा ये इनको हैंड ओवर किया गया फॉर टू इसरो फॉर द पर्पज ऑफ असेसिंग टेक्नोलॉजी रेडीनेस, मतलब जो गगनयान स्पेसक्राफ्ट है उसकी जो टेक्नोलॉजी है क्या वो रेडी है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया, हैंड ओवर किया गया। नेक्स्ट, कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया पहला प्राइवेट सब ऑर्बिटल यूरोपियन रॉकेट म्यूरा-1 SN1। ये म्यूरा-1 SN1 किस कंपनी का रॉकेट रहेगा? PLD स्पेस, राइट, ये एक स्पेनिश कंपनी है, इनका ये म्यूरा-1 SN1 रॉकेट रहेगा जो कि पहला प्राइवेट सब ऑर्बिटल यूरोपियन रॉकेट है, म्यूरा-1 SN1। नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक हाई रेजोल्यूशन एरियल ड्रोन बेस्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ड्रोन बेस्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च करने वाली वो कंपनी कौन सी बन गई है? यहाँ पे 5th मार्क कर लेंगे, गैलेक्स आई, राइट। इनके द्वारा ये एक गैलेक्स आई बेसिकली क्या है? स्पेस टेक स्टार्टअप है और इन्हीं के द्वारा ये हाई रेजोल्यूशन बेस्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम को लॉन्च किया गया एंड ये कंपनी पहली प्राइवेट कंपनी बन गई इंडिया में जिन्होंने ऐसा ड्रोन बेस्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम को डेवलप किया है, राइट। जो भी वेदर चेंजेस होंगे उसका यहाँ पे ये प्रॉपर डाटा दे सकती है, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 7th नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17 AK ऑफ द इंडियन नेवल शिप डैश, जिसको अभी लॉन्च किया मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पे इन मुंबई महाराष्ट्र। तो कौन सा नेवल शिप रहेगा? वो है INS महेंद्रगिरी, राइट। ये वो 7th नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट रहेगा ऑफ प्रोजेक्ट 17A जो कि डिलीवर किया गया टू द इंडियन नेवी, राइट। एंड ये आपका याद रखेंगे 4th फ्रिगेट रहेगा जो कि मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया। इसी के साथ साथ जो ये महेंद्रगिरी है ना, इसकी नेमिंग की गई आफ्टर अ माउंटेन पीक जो कि कहाँ पर है? ईस्टर्न घाट्स में है, और ईस्टर्न घाट्स में भी कहाँ पर? उड़ीसा में। फिर जो ये आपका महेंद्रगिरी है ये 149 मीटर्स लंबा रहेगा, 17.8 मीटर्स लंबा ये विड्थ में रहेगा एंड 3450 टन्स इसका वेट रहेगा। इसकी टॉप स्पीड रहेगी 28 नॉट्स। और एक चीज़ और याद रखेंगे, इस लॉन्च के बाद जापान वो 5th कंट्री बन गया है टू लैंड ऑन मून, 5th कंट्री बन गया है। 4th कंट्री कौन सी बनी थी? हमारी इंडिया। कौन सी मिशन के बाद? चंद्रयान 3 मिशन के बाद। और इससे इंडिया पहली कंट्री भी बनी थी जो कि साउथ पोल पे लैंड करा था ऑफ द मून। नेक्स्ट, नेम द डिफेंस सेक्टर जिसने रिसेंटली टेस्ट किया द एफिकेसी एंड फुल प्रूफ फंक्शनिंग ऑफ द मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम। मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम की एफिकेसी को टेस्ट करने के लिए नेम द डिफेंस सेक्टर, किस डिफेंस सेक्टर ने टेस्ट किया? तो वो है इंडियन एयरफोर्स ने भी टेस्ट किया इस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को। एंड इसमें भी याद रखेंगे ADRDE, करेक्ट। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब बोलें DRDO की, इनके द्वारा डिजाइन एंड डेवलप किया गया था ये आपका मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को। नेम द यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया ई रिसोर्स वेब पोर्टल ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट। तो कौन है वो? हमारे होम मिनिस्टर जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया वो है अमित शाह। ये बेसिकली आपका ई रिसोर्स वेब पोर्टल रहेगा, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है ई रिसोर्स। बेसिकली यहाँ पे जो भी आपकी मीटिंग्स होंगी उनका आउटकम, उनका डाटा यहाँ पे पब्लिश रहेगा, राइट। क्या क्या डिसीजंस लिए गए और इसकी मदद से आने वाले टाइम में जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी, जो भी आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट से यूनियन टेरिटरीज जो भी पॉलिसी बनाएंगी, इस डाटा को रेफर करके वो फर्दर अपना डाटा, अपनी पॉलिसीज को बना सकती हैं ताकि लोगों को उनके एरिया में बेनिफिट हो सके। तो ये ई रिसोर्स वेब पोर्टल फॉर द ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट, किस मेट्रो रेलवे ने रिसेंटली या विच मेट्रो रेलवे रिसेंटली बिकेम अ पार्ट ऑफ द एलीट ग्रुप ऑफ मेट्रोज दैट हैव शिफ्टेड फ्रॉम स्टील थर्ड रेल टू एल्यूमिनियम थर्ड रेल। थर्ड रेल बेसिकली क्या होता है? ये होता है आपका मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रेन्स या ट्रैम्स, ठीक। तो अभी स्टील थर्ड रेल सिस्टम से एल्यूमिनियम थर्ड रेल सिस्टम पे जो शिफ्ट हुआ है वो कौन सी रेलवे है? वो है कोलकाता मेट्रो रेलवे, राइट। और इस शिफ्ट के बाद ये एक एलीट ग्रुप में ज्वाइन हो गई ऑफ द मेट्रो जिन्होंने शिफ्ट किया फ्रॉम स्टील थर्ड रेल टू एल्यूमिनियम थर्ड रेल, राइट। मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट हमारा होमवर्क सेक्शन। नामधापा फ्लाइंग स्क्वेरल दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज एंडेमिक टू विच इंडियन स्टेट? दूसरा, विच इंडियन एयरपोर्ट रिसीव्ड रिकॉग्निशन एट यूनेस्कोस 2023 प्रिक्स वर्सलीज?
थर्ड, किस कंट्री, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक. चौथा, चर्च ऑफ एफिफेनी दैट हैज रिसेंटली secured prestigious UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation is located in which state. And पांचवा, as per the India Skills Report 2024, which state is the most preferred state to work. तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स. मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.